NIA کی تحقیقات، خالد لطیف اور عرفان سے بکیز کے رابطوں پر پوچھ گچھ، شاہزیب اور شرجیل کی کل طلبی، شرجیل، خالد لطیف اور PCB حکام کی 24 مارچ کو ٹربیونل میں طلبی۔ پاکستان میں عالمی ریسلنگ کے دروازے بھی کھلنے لگے۔ قومی ریسلر بادشاہ پہلوان خان غیر ملکی ریسلرز کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ اسلام آباد اور پشاور میں بھی مقابلے ہوں گے۔ حج کرپشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، حامد سعید کاظمی، راؤ شکیل اور راجہ آفتاب 6 سال بعد بری، سزائیں کالعدم۔ NA 110 دھاندلی کیس میں خواجہ آصف کی کامیابی کا فیصلہ برقرار، 10 گواہ پیش کر کے الیکشن کالعدم نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے عثمان ڈار کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب سپیڈو سروس کا بھی افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں جنگلہ بس کا شور مچانے والے آج خیبر پختونخوا میں میٹرو بنانے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ ہمیشہ احتساب سے بچ جاتی ہے۔ فوجی عدالتوں اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بل قومی اسمبلی میں پیش، منگل کے اجلاس میں معمول کا ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک منظور۔ فرقہ وارانہ جماعتوں کے سربراہان کے خلاف مقدمات نہیں تو کس قانون کے تحت کارروائی کریں؟ نرمی برتنے کا نہیں کہا، کوئی گونگا بہرا بن جائے تو اس کا حل نہیں۔ وزیر داخلہ کا پیپلز پارٹی کی تحریک پر سینٹ میں جواب۔ پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ واجہ پاکستان اور پاکستانی قوم پاکستان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یوم پاکستان کے پریڈ کا نیا پرومو جاری، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات کا خصوصی پیغام شامل۔ سہون حملے کے بعد بند کی گئی پاک افغان سرحد فوری کھولنے کا حکم، وزیر اعظم نواز شریف نے سرحدوں کی بندش عوامی اور معاشی مفادات کے منافی قرار دے دی۔ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، چودھری نثار کا قانون ہے۔ دوبارہ گرفتاری سے خوفزدہ شرجیل میمن کی 15 روز کے لیے راہداری ضمانت، مچل کے کل جمع کرانے کا فیصلہ، 5 اپریل کو متعلقہ عدالت میں پیشی کا حکم، چودھری نثار جعلی رہنما کے نشانے پر۔ پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے، ان کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ وہ کہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح روز چھت پہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے یہ کرو ورنہ میں چھلانگ مارنے لگا ہوں، روز یہ نہیں کرو گے تو میں شہر بند کر دوں گا۔ تنقید اور وہ بھی شدید، رانا ثنا نے توپوں کا رخ کپتان کی طرف کر لیا۔ شرجیل میمن گھیرا تنگ ہونے پر فرار ہوئے، جہاں کرپشن ہوگی ادارے کارروائی کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی پیغام۔ لاہور میں جعلی رہنما بابر بٹ قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، ملزم عاطف عرف آتی پاک پتن سے گرفتار۔ اشتعال انگیز تقریر کا معاملہ، کراچی کی خصوصی عدالت نے متحدہ بانی سمیت 8 مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا، فاروق ستار اور عامر خان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری۔ چائنا کٹنگ ریفرنس میں MQM کے شاکر لنگڑا سمیت KDA کے 14 افسران پر فرد جرم عائد، ملزموں کا صحت جرم سے انکار، 7 اپریل کو گواہ طلب۔ داتا دربار، GHQ اور پرویز مشرف پر حملوں میں ملوث دہشت گرد انجام کو پہنچا، افغانستان میں ڈرون حملہ، انتہائی مطلوب قاری یاسین 3 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ CTD سکھر کا خیرپور میں چھاپا، جیکب آباد دھماکوں اور نیٹو ٹینکرز پر حملوں میں ملوث کالعدم لشکر جھنگبی کا کمانڈر شعیب بروہی گرفتار۔ پنجاب حکومت کا مزید 52 افراد کو 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کا فیصلہ، سب کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ پیش۔
इंडस वाटर कमिश्नर्स मुज़ाकरात बहाल, इस्लामाबाद में बैठक। भारत के 3 बिजली मंसूबों पर बातचीत, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और किशन गंगा डैम्स पर डायलॉग आइंदा माह वॉशिंगटन में होंगे। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। नफीस जकरिया कहते हैं मोदी सरकार पाकिस्तान की इक्तिसादी खुद इन्हिसारी से बौखला कर दहशतगर्दी को हवा दे रही है। खाना और मर्दमशुमारी खुफिया रखना गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, कौम में खाना न होने पर पेशावर में सिख बरादरी का एहतजाज। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस, मालिकन उसका बेटा और बेटी मारते, अलमास मुंह पर काटती, पाँव में बेड़ियां डाली जाती, भूखा प्यासा रखा जाता। साइमा ने असिस्टेंट कमिश्नर को बयान रिकॉर्ड करा दिया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए छापा, खवातीन ने पुलिस एहलकारों की पिटाई कर दी, मुलजिम रफू चक्कर। कराची सिटी वार्डन डिपार्टमेंट में 145 गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ, तनख्वाहों के खुर्द बुर्द में मुलव्वस 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स बरतरफ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पेशावर में ना तजर्बाकार अफराद की भर्ती। दुनिया न्यूज की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिस, नक्शा जात की मंजूरी के लिए सब इंजीनियर्स की तैनाती का फैसला। कुछ नहीं पास तो फिर क्यों ना खाएं घास। नौशहर फेरोज में टाउन कमेटी ठारो शाह के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज। स्टीफन हॉकिंग को ट्रंप की माहौलियाती पॉलिसियों पर तहफ्फुज़ात, मामला अमरीकी साइंसदानों के सामने रखने की ख्वाहिश। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तबीयात कहते हैं डर है अमरीका में सदर की तासुब पसंदाना पॉलिसियों का सामना न करना पड़ जाए। अरब अमारात और सऊदी अरब में गर्दालूद हवाएं, हद्दे निगाह सिफर, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। काली आंधी से टकराने के लिए शाहीनों की परवाज, 6 खिलाड़ी और 10 ऑफिशियल्स कराची पहुंच गए। कौमी टीम कल वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगी। रणबीर कपूर और माहिरा खान के राजो न्याज, दुबई में बनाई गई वीडियो का सोशल मीडिया पर चर्चा। इरफान ने अपने बयानात अभी आपको बताएं कि फौजी अदालतों से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। 28वीं आईनी तरमीम का बिल वजीर कानून जाहिद हामिद ने पेश किया, जबकि महमूद अचकजई ने इस बिल की मुखालिफत कर दी। हज करप्शन केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिम बरी कर दिए। कौन थे ये मुल्जिम? हामिद सईद काजमी, राव शकील और राजा आफ्ताब। इन्हें 6 साल बाद बरी कर दिया गया। तो हज करप्शन केस में अदालत ने बड़ा फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हामिद सईद काजमी, राव शकील और राजा आफ्ताब को रिहा कर दिया। शर्जील मेमन की राहदारी की जमानत मंजूर हो गई। अदालती वक्त खत्म हो गया और फैसले पर दस्तखत ना हो सके। मचल के जमा कराए बगैर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए। हम आपको बता रहे हैं शर्जील मेमन के बारे में, जिनकी राहदारी जमानत मंजूर हो गई है। अदालती वक्त खत्म हो गया जिसकी वजह से फैसले पर दस्तखत ना हो सके। जंगल का कानून है। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। 5 अप्रैल तक मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। 20 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने की हदायत। शर्जील मेमन जमानत के बावजूद खौफजदा। यहाँ पे जंगल का कानून है। शर्जील मेमन के वकला कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन मुकदमात से भागते नहीं, सामना करते हैं। कराची अब इसके केस की प्रोसेस जो होगा उसमें जो लीड करेंगे फारूक नाइक साहब करेंगे। और हम समझते हैं कि हमने अपने आप को अदालत के सुपुर्द किया। अदालत ने हदायत की कि हम कराची में अपने मुकदमात की पैरवी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं कारकुन हैं,
उन पर जो झूठे केस किए जाते हैं मगर वो अदालत से फरार नहीं होते हैं, अदालत के अंदर आके अपना मुद्दा बयान करते हैं और इंसाफ हासिल करते हैं। शर्जील मेमन ने करप्शन रेफरेंस को चौधरी निसार एंड कंपनी की कारिस्तानी करार दिया। मुझे पता है कि ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो भले करते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि नैब इंतकामी कार्रवाइयां करना छोड़ दे, शर्जील मेमन को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर मलिक के हमरा आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मेट्रो मंसूबे को हदफ तनकीद बनाने वालों को आईना दिखा दिया। कहते हैं आज वही केपी में मेट्रो बनाने जा रहे हैं जो इसे जंगला बस के नाम से पुकारते रहे। देखते हैं लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। ईवान वजीर आला मॉडल टाउन लाहौर में तकरीब तो थी बसों के इफ्तिताह की, लेकिन वजीर आला शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं नियाजी साहब जिस मंसूबे पर तनकीद करते थे आज वो खुद उसे लगाने जा रहे हैं। जिस जंगला बस को वो दिन रात उसको रुकेते थे, आज मैं जंगला बस नहीं कहता, मैंने उनके अल्फाज वो दोहरा रहा हूँ। आज वही जंगला बस वो पेशावर में लगाने का मंसूबा बना चुके हैं। वजीर आला का कहना था कि इनकी पूरी कोशिश है कि गरीब को बाइज्जत सवारी फराहम की जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले इशारों पर रुकते हैं, लेकिन मेट्रो बस में जाने वाले तेज तरीन सफर तय करके अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुँच जाते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानियाल राठौर के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। हमले हर तरफ से। राना सनाउल्लाह ने तोपों का रुख कप्तान की तरफ कर लिया। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान को बिगड़ा हुआ जिद्दी बच्चा करार दे दिया। वो के बिगड़े हुए बच्चे की तरह रोज छत पे खड़ा हो जाता था कि मुझे ये करो वरना मैं छलांग मारने लगा हूँ, रोज ये नहीं करोगे तो मैं शहर बंद कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से जनाजे निकले हैं तो फिर ये याद रखें, तो फिर जनाजा जो है वो फिर बनी गाला से भी निकलेगा और फिर जो है वो लाल हवेली से भी निकलेगा। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। वजीर आजम ने पाक अफगान सरहद फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। सरहद 32 रोज पहले सन 7 के बाद बंद की गई थी। उम्मीद है अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये कह रहा था वजीर आजम नवाज शरीफ का। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर की दुबई में बनाई गई वीडियो का इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा है। माहिरा खान और हुमा अदनान की भारतीय अदाकार रणबीर कपूर के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन खास बात इस वीडियो में है जिसमें रणबीर कपूर और माहिरा खान सबसे अलग थलग बातचीत में मसरूफ हैं। दोनों ग्लोबल टीचर्स प्राइज सेरेमनी में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया न्यूज।